Good morning, students. Today I am discuss of the modern periodic table. Modern periodic tables, horizontal raw and the vertical raw. Horizontal raw called a period. 7 horizontal law called period and 18 vertical column called group. Okay, group are also divided in the subgroup depends upon the 2, 8, 18, 18, 22 are the first periods. Only two electrons and one orbitals. Okay, it's same process of the second period. Second period, total presence of the 8 electron. Okay, s orbitals and p orbital. S orbital and p orbitals. S maximum electron 2 and p maximum electrons 6 is equal to हो जाएगा 8 electron. तो first, second and third periods are short period. Okay, because the minimum electron presence is 288, so it is called short period. Long period are starting fourth period, fifth period, sixth period and seventh period. First periods are started. Now there are 7 periods. Our period start with the different principal quantum number. जो 7 periods होते हैं वो डिफरेंस क्वांटम नंबर पर डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल period. Okay, this is called the horizontal. हॉरिजेंटल रॉ होती है ये. हॉरिजेंटल रॉ होती है वो कैसे होती है सर? जस्ट अपोजिट. ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन. 7 पीरियड्स है. 7 पीरियड्स में जो आपका फर्स्ट टू थर्ड है ये शॉर्ट पीरियड्स कहलाता है. शॉर्ट पीरियड्स. ओके, और 4 to 7 जो है वो लॉन्ग पीरियड्स. लॉन्ग पीरियड्स. The total long form periodic table depends upon the electronic configuration. According to electronic configuration, first periods are present only s orbital. Only s orbital. S orbital maximum present electron 2. So first periods are present 2 element. Second period consists of the S and P. S and P consist of the 2 plus 6 is equal to 8 element. ओके, इस 1 कर सकते हैं, इसको हम 2 कर देंगे, ये भी 2 हो जाएगा और थर्ड में हो जाएगा 3s 3p. ओके, is equal to 2 plus 6 is equal to total electron present in the third period 8 electron. First में 2, second में 8 and third में 8. 2 8 8. Now fourth periods are present 4s plus, यहां चेंज हो जाएगा बेटा, 4s 3d प्लस, अब यहां पर 3p हो चुका है, यहां पर हो जाएगा 4p. ओके, हम ऐड कर देंगे. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द s इज इक्वल टू 2, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द d 10 and maximum electron present in the p orbitals 6. Total electron or total element present in the 4 period is 18. 2 8 8 18. Now fifth periods are present, generally its name electrons are 18 electrons, so it so is 5s plus 5s, ये 3d है, यहाँ पर हो जाएगा 4d plus
4p है, यहाँ पर हो जाएगा 5p. Okay. Now maximum electron at present 2, 10 plus 6 is equal to 18. Now first period present in the 2 electron, like 2 elements. Second 8 electron, 8 elements. Third 8, fourth or fifth 18 electron. This is serial way of the electronic configuration. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Electronic configuration of the increasing order of the periodic tables of the also increase. Now six period are present in 6s plus, according to bow of the increasing energy, 6x. After that 4f f ऑर्बिटल यहां पर ऐड हो जाएगा, 4f ऑर्बिटल. फिर ऑलरेडी 5b, ऑलरेडी 4d हो चुका है. लास्ट में आपका यहाँ पर आ जाएगा 6p, क्योंकि यहाँ पर 5p हो चुका है, तो ये हो जाएगा 6p. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सीरियल से कर लेंगे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हम यहीं से किसी भी एलिमेंट्स का कर देंगे अकॉर्डिंग टू पीरियड. ओके. नाउ सेम कंडीशन, s maximum electron present in the 2, f maximum electron present in the 14, and d maximum electron present in the 10, p maximum electron present into 6. So 2 plus 14 plus 10 plus 6 is equal to 32. So 6 periods present are the 32 elements including of f orbital. Okay, because the 18 vertical columns are the present in the groups, but there are the 32 elements. So not periodic table show of the 32 column, because the 14 column are present in the f. पीरियोडिक टेबल्स के नीचे आप देखेंगे f ग्रुप होता है. f को 32 में ऐड कैसे करते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में 7 होते हैं और वर्टिकल में आपके कितने हो जाएंगे 18, बट यहाँ पर आ रहा है कितना 32. मतलब 32 में 14 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो f के होंगे, जो कि ऑलरेडी अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जनरल फार्मूला से पता चल जाएगा. ओके. नाउ नेक्स्ट 7 पीरियड एंड लास्ट पीरियड. 7 पीरियड एंड लास्ट पीरियड, 7s प्लस 4f है, यहाँ पर 5f, 6d एंड 7p. सेम करेंगे वही कॉन्फ़िगरेशन. 2 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 32. ओके. तो नाउ फर्स्ट पीरियड 2, सेकेंड पीरियड 8, थर्ड पीरियड 8, fourth period 18, 32. According to arrangements of the electronic configuration depends upon the periodic table. All element represents of the same periodic tables. Presence of the electron: 2s maximum present in the 2 electron, p maximum present in the 6 electron, d maximum present in the 10 electron, and f maximum present in the 14 electrons. Okay. जनरल फीचर्स है इसमें. अकॉर्डिंग टू हुड्स, अकॉर्डिंग से आप बहुत से मतलब नहीं है, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल है. अगर थर्ड पीरियोडिक टेबल है तो थर्ड पीरियोडिक टेबल में आप कोई भी देखेंगे तो वहां पर आपको ये केवल 3s और 3p के ही एलिमेंट्स आपको फाउंड होंगे, क्योंकि कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं होगा जो इसमें का नहीं होगा. मान लेते हैं, हम एग्जांपल ले लेंगे, जैसे मान लीजिए हमने पोटेशियम ले लिया, तो पोटेशियम 19 हो रहा है बेटा, तो कुछ नहीं, यहीं से अरेंज करते चलिए. 1s2 या अभी इसको लगाइए, बाद में भी लगा सकते हैं. 2s2, फिर आएगा आपका 2p6, लास्ट फिर यहाँ पर आया क्या 3s2, और फिर ये आ गया आपका 3p6. देखिए 2 प्लस 2 4, 10 और 18. अब ये लास्ट में आएगा आपका, देखिए 4s1. ये 4s1 ऑलरेडी आ गया, जो कि फोर्थ पीरियड में है, s ब्लॉक में है और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का है. तो आपको अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल जैसे आपने यहाँ पर बनाया होगा s ब्लॉक का, ये s ब्लॉक का हो जाएगा, ये d ब्लॉक के लिए हो जाएगा, यहाँ पर p ब्लॉक के लिए हो जाएगा. तो यहाँ पर कंसिस्ट ऑफ द 7 पीरियड, ये 7 पीरियड्स है.
1 2 3 4 5 6 7, तो ये ऑलरेडी आपको क्या करेगा, कंप्लीट करवा देगा। यदि 4 में है तो ये पता चल जाएगा आपका कि 4 में है और S में है, इसलिए यहाँ पर पोटेशियम शो करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आ जाएगा। तो जर्नल लगभग 78 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करते हैं सेम जगह पर। बाकी और एलिमेंट्स हैं उसमें कुछ न कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है, जैसे हॉफ फील्ड, फुल फील्ड है ना, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो ऑलरेडी क्या होता है एफ के लिए थोड़ा सा जीरो हो जाता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे, आपको आ जाएगा। ये बहुत सिंपल सा है। तो पीरियोडिक टेबल में जनरली आपको इसको काउंट करना है। अगर ये काउंट आप कर लेते हैं, इसी से आप क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से आप बना लेंगे, क्योंकि अभी तक आपको केवल पीरियड्स पता चले हैं। अब आपको क्या पता चल जाएगा, ग्रुप पता चल जाएगा। तो ग्रुप से डिवाइड होता चला जाएगा कि फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, ठीक है, ए और बी में कंसिस्ट हो जाएगा। यहाँ पर केवल एस, टी, बी को हम डिवाइड करते हैं और एफ हमारा जो होता है 4F है, 5 है, यहाँ पर ये हो जाता है लैक्टेनाइड और एक्टेनाइड। बाद में इसी को इंक्लूड कर देते हैं इसी में, तब हो जाता है आपका 32 इलेक्ट्रॉन। नहीं तो 18 है तो 18 कॉलम है, तो 32 कैसे आता है? 18 में आप ये क्या करेंगे, 14 कॉलम होते हैं, ये 14 कॉलम को जब इसमें ऐड कर देंगे 14, तो ये हो जाएगा आपका 32। इसको ऐड करके तभी हमारा यहाँ पर 6 और 7th में एफ ब्लॉक प्रेजेंट रहता है, इसलिए यहाँ पर 32 आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर आप लर्न करने की बात आई तो बेटा इसमें ध्यान से देखिए, केवल एस जो है एकदम सीरियल से है, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। एस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यही इसका क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी हमने बताया कि डिफरेंस पीरियड्स ऑफ द डिफरेंस क्वांटम नंबर, जैसे जैसे आपको पीरियड डिफरेंस हो जाएगा, ये सारे आपको क्या है, क्वांटम नंबर है, ठीक है, ये सारे क्वांटम नंबर हैं। इस क्वांटम नंबर से जैसे पीरियड चेंज होता है वैसे क्वांटम, अगर 7 पीरियड है तो इसका 7, यहाँ से तो इन दोनों में तो सेम होता है, यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं होता। यहाँ से डी आ जाता है पैसे, क्योंकि आपने अभी एनर्जी वाला N+L रूल में आपने देखा था कि 4s के बाद क्या, यहाँ 3p के बाद 3d नहीं आता है, क्या पहले आ जाता है, 4s आ जाता है। अब 4s किससे, 4 का मतलब हो गया कि वहां पर क्वांटम नंबर क्या है, 4 हो गई, इसलिए यहाँ पर भी पीरियड क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। अब 4 में ये तीनों ऐड होते हैं, देखिए S हो जाता है, D हो जाता है, क्योंकि S के बाद D आ जाता है, यहाँ पर D आया नहीं तो इसलिए D यहाँ आ जाता है, फिर 4p हो गया। सेम कंडीशन में इन दोनों की होती है, केवल क्वांटम नंबर चेंज हो जाते हैं। 4 की जगह 5 हो जाता है, 3 की जगह 4, 4 की जगह 5, यही प्रोसेस सेम इसमें होता है। 6 4f यहाँ पर है, यहाँ 5f, यहाँ 5d है, यहाँ 6d, यहाँ 6p है, यहाँ पर 7p। ओके, अब हम ग्रुप की बात करेंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है कि शॉर्ट पीरियड्स प्रेजेंट आर द मैक्सिमम पीरियड्स आर इलेक्ट्रॉन, तो आप ऐड करें 2 8 8, ये ऐड हो जाएगा तो k या m भी आपको समझ में आ जाएगा। x इज इक्वल टू k सेल, ये देखिए ये सारे सेल्स हैं और ये सारे क्या है ऑलरेडी, देखिए k के लिए है, अगर 6 है तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो k इज इक्वल टू होता है s एल, यहाँ पर एस एंड पी हो जाता है, तो उसी तरह देखिए एस एंड पी है ये। तो सेम अगर देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू बोरबरी में भी इसमें कुछ मिल रहा है, बाउ से इंक्लूड हो रहा है और इलेक्ट्रॉन स्पिन जैसे हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू हुम्स हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लगभग लगभग सबका यूज होता है उसमें। अब अकॉर्डिंग टू वर्टिकल कॉलम की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्टिकल कॉलम होता है 1 to 18 वर्टिकल। हाँ बेटा, अभी मैं उसका जनरल फार्मूला आपको बता दूंगा। एफ ब्लॉक का भी आप कर सकते हैं, एफ ब्लॉक में जीरो भी इंक्लूड होता है, कुछ उसमें ऐसे एक्सेप्शन है जिसकी वजह से बच्चे समझ नहीं पाते कि सर कैसे आएगा। एकदम अकॉर्डिंग टू जो मैं अभी आपको बताया था, सेम प्रोसेस से ही, इसी प्रोसेस से, यही सीरियल नंबर से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो।
ठीक है। अभी मैं जनरल फार्मूला आपको बता दूंगा। वहां देखिए डी में n-1 हो जाता है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। इसी तरह जब f करेंगे तो f में क्या हो जाता है n-2, f0 to 2, f0 to 14, फिर d1 to 10 एंड p1 to 6। तो ये जनरल फार्मूला है। थोड़ा सा पहले इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए पीरियोडिक टेबल्स का, उसके बाद इसके हम जनरल फार्मूले से एक एक एलिमेंट्स का जनरली, वैसे अभी आपको और आगे जब पढ़ेंगे तो इसमें केवल प्रॉपर्टी है और थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। बाकी एक एक पीरियड्स का जब आप पढ़ेंगे, यानी एफ ब्लॉक जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, पी ब्लॉक पढ़ेंगे, डी ब्लॉक पढ़ेंगे, तो उसमें एक एक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। मैंने बताया ना 76 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इक्वल रहते हैं। बाकी और एलिमेंट्स हैं 114 में, वो क्या करते हैं जैसे क्रोमियम, कॉपर, लेड, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। एफ ब्लॉक में भी है गैडनियम, लेरेंसियम, ऐसे करके थोरियम, नेपट्यूनियम, ब्लैकनियम बी के। तो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि जिसमें क्या होता है हाफ फील्ड फुल फुल, इसमें एक प्रोसेस होती है उसके थ्रू, जैसे जिसमें F7 आ जाएगा तो F6 की जगह F7 इंक्लूड हो जाएगा। इसमें ध्यान से देखना है कि अगर P में P ऑर्बिटल में देखेंगे हाफ फील्ड कब होगा, S में जब 1 इलेक्ट्रॉन रहता है तब हाफ फील्ड कहलाता है, P में जब 3 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तब वो हाफ फील्ड कहलाता है, D में 5 इलेक्ट्रॉन जब रहेंगे 1 करके तो वो भी हाफ फील्ड कहलाएगा। इसी तरह एफ में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे 7 ऑर्बिटल्स में तो वो भी हाफ फील्ड होगा। इसके जस्ट डबल हो जाएगा तो वो फुल फील्ड हो जाएगा। तो हाफ फील्ड फुल फील्ड में जहां पर ये प्रोसेस आता है वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आ जाता है, जिससे जीरो भी इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जैसे n02 अभी एफ में आएगा जनरल फार्मूले में। तो जीरो का मीन्स क्या हो रहा है, तो वहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करेगा, तो वो हो जाएगा। पहले आप सीरियल से चलिए, ठीक है। ओके, ना स्टार्ट करते हैं आपको हम पीरियोडिक टेबल। इसमें 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, इधर होता है आपका पी ब्लॉक, बीच में हो जाएगा आपका डी ब्लॉक और यहाँ पर हो जाता है एफ ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक स्मॉल रहेगा सब, और ये आपका डी ब्लॉक हो जाता है, सबको मालूम होगा ये जनरली। अब यहाँ पर आपने देख लिया है कि क्या है, 7 पीरियड है जिसको ऑलरेडी हम इंक्लूड कर चुके हैं, 4 5 6 7। अब 7 में एस में आप देखेंगे जनरली जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो तो थ्रू आपको पता ही चल जाएगा। अब फैमिली मेंबर की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल में ये तो आपका क्या हो गया, सारे पीरियड्स हो गए, और इधर क्या हो जाएगा आपका ग्रुप्स हो जाएगा, ठीक है। इस ग्रुप को हम जनरली अगर ऐड करते हैं तो ये 18 ग्रुप्स पहले कहलाते हैं। 18 ग्रुप्स में 4 के बाद यहाँ अलग 10 हो जाता है, 10 के बाद ये हो जाएगा अभी आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर समझ लीजिए, उसके बाद आपको आ जाएगा, ठीक है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, आपसे पूछा 17 इलेक्ट्रॉन, 17 ग्रुप इलेक्ट्रॉन, तो 17 आप कैसे आएगा, ये 1 है ये 2 है, ध्यान से देख लीजिए ये सीरियल से चलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तक यहाँ हो जाता है, 13 से स्टार्ट होगा, 13 14 15 16 17 एंड लास्ट में होता है आपका 18। ये तो बेटा आपका ग्रुप डिवाइडेशन है जो वर्टिकल कॉलम में प्रेजेंट होते हैं। 18 टाइप्स की ये वर्टिकल कॉलम में प्रेजेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट कम है। इसके बाद जो इसका सब ग्रुप होता है वो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो सीरियल से एक बार आप कर लेंगे आपको आ जाएगा, ठीक है। सब ग्रुप के लिए हम स्टार्ट करते हैं, यहां से शुरू करेंगे तो ये फर्स्ट ए होता है रोमन में, फर्स्ट ए, ये हो जाएगा सेकेंड ए। ध्यान से थोड़ा सा देखना है आपको कि सेकेंड ए के बाद थर्ड ए यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये बी है, ये सारे सब ग्रुप ए हैं और ये बी हो जाएगा, ओके। तो फर्स्ट से सेकेंड ए, नाउ 13 में जो आ जाएगा यहाँ पर ये आ जाएगा थर्ड ए, तो सीरियल से अब चलेगा थर्ड ए, फोर्थ ए, फिर यहाँ पर फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवेंथ ए एंड लास्ट में इसको कहा जाता है 18 ग्रुप या जीरो ग्रुप, लास्ट वाले को हम नोबल गैस या जीरो ग्रुप
किसी किसी बुक में दिया है 18A, बाकी 8A, बट 8A की जरूरत नहीं है, ये जीरो ग्रुप होता है या नोबल गैस, ऐसे कर सकते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड द इनर्ट गैस, तो ये इनर्ट गैस हो जाती है। तो देखिए ग्रुप, अब आपसे कैसे क्वेश्चन होगा, 16 7th A, 16 6A, तो 16 में हमेशा 6A एलिमेंट्स आएगा, 17 में 7th A। ओके, ये डिवाइडेशन हो जाता है आपका सब ग्रुप का। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बात ये ध्यान देंगे, 11 12 में फर्स्ट बी और सेकंड बी आता है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट बी हो जाता है और ये आपका हो जाता है सेकंड बी, ठीक है। और ना लास्ट फिर यहाँ से फिर हो जाता है थर्ड बी, क्योंकि सारे बी वाले होते हैं, थर्ड बी, फोर्थ बी, ये आता चला जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा फिफ्थ बी, ये हो जाएगा सिक्स बी, ये हो जाएगा यहाँ पर सेवेंथ, सब में भी रहेगा सीरियल से उसी प्रकार। ओके, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवेंथ बी, और यहां पर आपको ध्यान से देखना है, 7 के बाद 8 भी नहीं कर देना है, ये टोटल तीनों 8 कहलाता है। यानी ये 8 को डिवाइडेशन करते हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये तीनों 8 9 10 वाला ये सब ग्रुप में डिवाइड हो जाता है। इसको 8 स्मॉल ए, 8 स्मॉल बी, 8 स्मॉल सी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, फर्स्ट बी से यहाँ शुरू कर दिए लास्ट तक, ऐसा नहीं है। इसमें सीरियल आता है 7th A तक, फिर जीरो, इसमें फर्स्ट बी से स्टार्ट होता है, सेकंड बी, नाउ थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, 8 including of the 8 9 10 groups are includes of the 8B element, now 8 small a, small b and small c, ठीक है। ये जनरली क्या हो जाता है, वर्टिकल कॉलम पर होता है, ये आपके ग्रुप डिवाइडेशन हो जाते हैं। अब यहाँ से आप बोल सकते हो कि हमारा स्टार्ट होता है 7 पीरियड में, जैसे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आप देख रहे थे, तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो है, यहाँ पर केवल हाइड्रोजन और इधर का जो हो जाता है आपका हीलियम, ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसका जनरल फार्मूला भी हम लिख देंगे NS2, ये हो जाता है N मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, S1 और S2 आएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन देखिए, तो आपने जहां पर उसमें देखा था, तो यहाँ पर फर्स्ट पीरियड में कितने प्रेजेंट है, 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, जिसमें हाइड्रोजन है एंड हीलियम है, ठीक है। तो सेकंड अगर देखेंगे, तो सेकंड वाला जो होता है उसमें क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, इसमें बेरिलियम हो जाएगा। अभी डी ब्लॉक से कोई मतलब नहीं है, ये 3 हो गया, ये 4, और यहां से जो स्टार्ट आपका हो जाता है बेरिलियम हो गया, उसके बाद क्या, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, तो बोरान हो गया, तो यहाँ पर कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, नियान हो गया। तो बेटा देखिए ध्यान से कि 2 एलिमेंट सेकंड पीरियड प्रेजेंट आफ्टर 8, 2s and 6 elements are present in the P, तो 2 + 6 हमने लिखा भी था उसमें, आप देख लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 और ये 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए, 8। इसी प्रकार 2 8 8 18 18 32 32 आप करके निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, जो कि सेकंड पीरियड स्टार्ट हो गया, सेकंड पीरियड के आर लेफ्ट टू राइट में पूरा सेकंड पीरियड हो गया। अकॉर्डिंग टू फैमिली मेंबर ग्रुप ऑफ द फर्स्ट ए, अगर फर्स्ट ए पूछता है तब आपको पूरा देना पड़ेगा। पूरा कैसे, मतलब जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, फिर सोडियम हो जाएगा, यहाँ पर पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रेंचनियम। अब ये अगर फर्स्ट ए ग्रुप पूछता है या फर्स्ट ग्रुप, तो टोटल नंबर आपको ये देने पड़ जाएंगे। और अगर केवल अकॉर्डिंग टू पीरियड्स बताता है, तो पीरियड्स में जो हमने आपको बताया था 2 8 8 18 18 32 32, तो वो पूरा उसी प्रकार कॉलम ऐड होता चला जाएगा आपका, वहां से पूरे कॉलम की। अब आपको कोई फैमिली मेंबर बन गया, पहला मेंबर जो होता है फैमिली मेंबर होता है, अगर ग्रुप में पूछेंगे तो हमको फैमिली मेंबर बताना पड़ेगा, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड टिटस, तो ये ऐसे क्या हो जाएगा आपको, फैमिली हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू पीरियड चलना है तो सीधे से आप चलते चलिए। अब देखिए थर्ड पीरियड में भी हमने बताया 2 8 8
8 का मतलब इसमें भी 8 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया ऑर्बिटल। सोडियम, सोडियम के बाद क्या आ गया, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के बाद यहाँ देखिए सेम सेम प्रोसेस वही आ जाएगा आपका। मैग्नीशियम के बाद आपको सबको मालूम है क्या होता है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस, ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा, सल्फर। यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन, यहाँ पर आ जाएगा आपका आर्गन। आर्गन तो 2 8 यहाँ भी इंक्लूड हो गया, ये 2s वाला हो गया और 3p वाला हो गया, ठीक है। अब अगर रही बात इसकी बात करते हैं फोर्थ की, तो फोर्थ में आपका दोनों आ जाएगा, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से अच्छे से बना लीजिएगा, वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये ग्रुप में जब डिवाइड करना स्टार्ट कर रहे हैं तो सीरियल से चलना है, तो 13 एलिमेंट्स तो आपको एकदम लर्न होते हैं जो आपकी अच्छे से बना लेते हैं। अब यहाँ से पोटेशियम के बाद तो कैल्शियम आएगा, बट यहीं से एक नया डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी आप लोगों को हमने लर्न भी करवाया था, बाकी आपको कुछ पता भी होगा, नहीं होगा तो एक बार आप देख लीजिएगा, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 10 6, अब देखिए जो अभी पहले इसके पहले बना था 2 8 6 बना हुआ है, तो 2 8 6 में आप आराम से स्कैडमियम, स्कैडमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है, मैग्नीज, आयरन, आप लोग को मालूम है, पता है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब जिंक, ठीक है, गैलियम, गैलियम ये सब आ जाएगा। गैलियम हो जाता है इसमें, आप देख लेंगे अभी आ जाएगा, ठीक है। गैलियम, जेनेरियम जितने भी कंपोनेंट्स है ये आगे चले जाते हैं, AsE, आर्सेनिक, ये सारे मेंबर ऑक्सीजन के हो जाते हैं। सिलिकॉन, तो ये क्लोरीन के बाद आपको मालूम है कि ब्रोमीन होगा, और हीलियम, नियॉन, आर्गन के बाद क्या होगा, क्रिप्टन होगा। अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलता जाएगा। 11 ये 12 सीरियल से चलता है, 13 14 15 16 17 18, फिर सीधा यहाँ पर हो जाएगा 19 20 21 से स्टार्ट होगा, और 30 का जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है यहाँ पर 31 से स्टार्ट हो जाएगा, क्रिप्टन तक जाएगा यहाँ पर, क्रिप्टन, ठीक है। 36 हो जाता है, आप सीरियल से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो। अब इस तरह अगर हम भरते हैं तो क्या करना पड़ता है, हमारे जो मेंबरशिप होते हैं उस मेंबरशिप में हमको लर्न करने में एटॉमिक नंबर से डिफरेंस आता है, तो हम फैमिली वाइज लर्न कर लेते हैं। फैमिली वाइज कैसे, जैसे हाइड्रोजन फैमिली का पूरा लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन फैमिली आप पूरा लिख देंगे। इसी प्रकार ऊपर देखिए आपका क्या है, बेरिलियम है, तो बेरिलियम फैमिली का भी लिख देंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसनियम, बेरियम, ये इसी फैमिली का हो जाएगा, ठीक है। रेडियम, आर, तो ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो जनरली अब अगर इसको भी देखते हैं तो इस कैडमियम के बाद व्हाइटनियम, जो व्हाइटनियम आ जाएगा, व्हाइटनियम आप देखेंगे तो यहाँ पर 39 होता है, देख लेंगे 36 37 ये 38, यहाँ पर 39 हो जाएगा। अब बेटा यहीं पर आप लोग बोल रहे थे, यहीं पर देखो क्या है, लैंथेनाइड्स है और ये एक्टिनाइड्स है। यहाँ पर 1 स्टार लगा होता है, यहाँ पर 2 स्टार लगा होता है। इस स्टार से इंक्लूडिंग होता है कि 14 इलेक्ट्रॉन्स और है, ठीक है। ये 57 होता है आपका, और ये यहाँ पर ये 56 है, ये आपका 55 है। तो आप जो बोल रहे थे कि लैंथेनम जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, एफ ब्लॉक एलिमेंट कैसे हो जाएगा, ये 89 हो जाएगा, ये 88 है आपका, ये 87 है। तो ये बेटा क्या है, एस्कैडियम। अब यहाँ पर लैंथेनाइट के बाद 57 से अगर देखेंगे तो 57 के बाद जब 58 आएगा, या 89 के बाद जब 90 आएगा, तो ये सारे एलिमेंट्स 14 तक आप देखेंगे, ठीक है। इसमें सीजियम, इसमें थोरियम, मानते हैं ये क्या है, Ce है, और ये क्या हो जाएगा, थोरियम हो जाएगा, TH हो जाएगा। ये ऑलरेडी आपका क्या है, 4F का है, और ये 5F का है, ठीक है। इसको लैंथेनाइट बोलते हैं, लैंथेनाइट्स, और इसको एक्टेनाइट्स, ठीक है। अब इसके बाद ये पूरा 14 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 58 से लगातार जाएगा किसमें, 71 तक, लैंथेनियम 71 हो जाता है, Lu यहाँ तक पहुंच जाएगा ये, ठीक है। इसमें 89 से आएगा 103 तक जाएगा, ये भी 14 एलिमेंट्स हो जाएगा। इस प्रकार आप लर्न करके देख लेंगे तो ऑलरेडी एक एक आ जाएगा। टाइटेनियम, जर्कोनियम, यहाँ पर जर्कोनियम होगा, हाफनियम हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। ऐसे प्रकार करके डिब्रोनियम, इसको डीबी, एक एक करके फैमिली हम पढ़ लेंगे। फैमिली में लर्न करने के लिए, जैसे आयरन है, आयरन फैमिली के लिए हो जाएगा आयरन
ठीक है, आयरन, रुबेडियम, ऑर्सेनियम, अर्सेनियम, ये सब आपके कॉपर है, तो कॉपर के बाद सिल्वर आ जाएगा, सिल्वर के बाद गोल्ड आ जाएगा, ऐसे करके आपको धीरे धीरे लर्न हो जाएगा। ठीक है, आरजी आ जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से एक्वेरियम से। बाकी ये आपके फैमिली वाइज मेंबर जब बनेंगे तो आप में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक को बहुत अच्छे से एक एक आप एक एक एलिमेंट्स को पढ़ना है, जिसमें आपको पता चल जाए कि बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम, ठीक है, ऐसे करके ये आ जाएगा आपका। तो ये सारे इंक्लूडिंग होते चले जाएंगे, टीएल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये अब आप इसको पूरा इसी प्रकार करके जब फिल कर लेंगे, टाइम जा रहा है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टंगस्टेन, ठीक है, जर्मेनियम, ये सब पूरा फैमिली वाइज। तो फैमिली वाइज जब मेंबर पढ़ लेंगे तो अपने आप आपका इंक्लूड हो जाएगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, एसडी, ऐसे करके जो हमारे लैंथेनाइड्स में कंपोनेंट्स होंगे उसको हम अलग कर देंगे, वो सारे कंपोनेंट्स आपको अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये बिस्मथ। अब यहाँ वाले जो हैं वो आपको हम पढ़ाएंगे 101 से लेकर लास्ट तक 119 तक, जिसको आप लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में इसके आईपीएससी नॉमेनक्लेचर से जानेंगे, जिसमें अननिल ना, अननेनियम, अनडेक्नीनियम, ऐसे करके